Very good evening to everybody, and hope I am not disturbing you on this weekend evening, Saturday evening, where we want to spend time with the families. So I was really fascinated with this feature of Twitter. So we said, okay, let us have open discussion on different hedging techniques which are there in options trading on this Twitter spaces. So I would be taking your questions also, and I am waiting for my friend Mr. Santosh Pasi also will be joining to answer all your questions. And so whatever we are seeing is happening into Adani Group shares, right? So that is really scary, and we feel bad about it. But one consolation which always is there with me is that okay, चलो मैं stocks में ज़्यादा काम नहीं करता. Not only Adani, otherwise also नहीं करता. Not to say that okay, stocks में काम करना कोई बुरी बात है, but otherwise also I am fully you can say devoted to options and option trading strategies only. And in strategies also, most of my strategies are very risk defined and hedged. So most of the time, even this kind of movements, whatever happens in the market, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते. And hedging techniques में like many times we have this understanding that okay, सिर्फ sellers ही hedge कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है. Sellers can also hedge, even buyers can also hedge their positions. And secondly, another point which I want to make, that okay, hedging doesn't mean that okay, there will be no loss. There can still be some losses, but obviously hedging has different purposes. Hedging can be used to reduce possible losses, and hedging can be done to increase your profits. Hedging can be done to lock your profits. So different purposes of hedging are there. But yes, when market movements are very harsh, it becomes very important that okay, we are into strategies which are pretty much hedged. Now, many times again we have this understanding that okay, only non-directional trades can be hedged, which is also not, I'll say 100% true. Even directional trades can be hedged. So I will like to give an example that okay, suppose you have purchased something and you have a directional sense that okay, market will be uh, pretty much bullish from here. And let us say आपका जो भी direction है वो ठीक भी हो गया. Let's say you thought that okay, market will be bullish and market is actually bullish. So suppose you have purchased a call, let us say in 100 rupees, and that call has become 130 rupees, 140 rupees. क्या अब hedging हो सकती है? Is hedging possible at that time? Now first question comes to our mind is कि अब मेरे को hedging करना ही क्यों है? Why should I do a hedging? Because if you are not ready to scare off that position, because अभी भी आपका view है कि yes, there is still some more steam left in the trade, there can be more profit in the trade, then obviously मैं उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहूंगा. लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा जब तक मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं कर रहा, that means obviously there is a chance that okay, trade can go bad and जो मेरा profit है वो खराब हो सकता है. तो यहाँ पे जो hedging होगी, that hedging will be the profit, right? मेरा 40 rupees जो profit हुआ है, can I lock the major portion of that profit? That will be hedging. So maybe one of the ways to lock this profit is that okay, once we have purchased a call, let us say you have purchased a call in 100 rupees, that call has already become 140 rupees, then I will do as a hedge so that I'm locking in some profit. I will go to a higher strike and then sell a call. उससे होगा क्या कि जो मेरा परचेज कॉस्ट है, मे बी आई विल बी एबल टू सेल अ हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल at 110. So I have purchased a call in 100, it has become 140, 40 rupees profit is there. But यहाँ से I am always afraid, you see, सबको होता ही है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है. तो ऐसा ना हो जाए कि मेरा अभी 40 रुपीज प्रॉफिट है और 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, वो खराब हो जाए, तो मैं हायर स्ट्राइक का जाके शायद 110 वाला कॉल बेच दूं. उससे क्या हो गया कि मैंने मार्केट को दिए थे 100 रुपीज फॉर बाइंग दैट कॉल, एंड मैंने मार्केट से ले लिए 110 रुपीज. सो 10 रुपीज प्रॉफिट तो मेरा पक्का लॉक हो गया. प्लस डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज की है फॉर सेलिंग, अभी भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, इफ द मार्केट स्टिल कंटिन्यूज इट्स बुलिश रन,
I can get more profit also. So this kind of a strategy becomes a bull call spread where I have purchased a call and I have sold a call, but both are not done at the same time. They are done at different times, which is giving me an opportunity to lock some profits. Right. Similarly, so here I have given you an example where even if you are a buyer, hedging can be used to lock your profits. And even if you're seller, hedging can be used to lock your profits. If you're seller, hedging can be used to lock your losses, to reduce your losses also. So lock your losses थोड़ा सा अच्छा word नहीं लगता है. Reduce your losses के लिए भी कर सकते हैं. If I give you an example, suppose you have sold a call. It can be a call in stock, it can be a call in index, it can be a call in anything. Suppose you have sold that call and उसके बाद market has started going up. So when you are selling a call, it has a potential to give you unlimited loss. So here, when I'm selling a call, obviously my view is that okay, market will go down. I was bearish in the market, but my view has gone wrong. तब उसके बजाय कि मैं उसको ऐसे ही रख के बैठा रहूं और होने दूं लॉस, which is generally you start feeling freeze कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा सारा व्यू गलत हो गया. I can immediately buy a higher call. Same action which I have told in the previous example, same action we are taking, but we can again buy another call. उससे क्या होगा कि my loss will also again become limited. From unlimited loss, it will get hedged and it will become again a limited loss strategy. And this time it will become a bear call spread because I have sold a call and then I have purchased a higher call, right? So these are like certain practical techniques. When you are trading in options, we should be ready that okay, whatever position I have taken, there should always be a plan ready with my plan, ready with in my mind that okay, in case things go wrong, how I am going to tackle those situations. अगर वैसा कोई प्लान नहीं है रेडी, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यार मैंने एक व्यू लिया था, उस व्यू के साथ मैं चल रहा था और वो व्यू तो हुआ नहीं. अब मैं क्या करूं? या तो मैं लॉस ही बुक कर दूं, या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं लॉस ना बुक करूं और थोड़ा और टाइम ले लूं मार्केट में. देखा क्या गया है कि इफ वी आर एबल टू सिट इन द ट्रेड फॉर सम मोर पीरियड, कई बार आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जब मैंने आउट ऑफ यू कैन से डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, कोई ट्रेड स्क्योर ऑफ कर दिया, जैसे ही मैंने स्क्योर ऑफ किया वहीं से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गई. जैसे ही मैंने लूजिंग ट्रेड को स्क्योर ऑफ किया वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई. और मैं हर बार सोचता हूँ अरे यार, अगर मैं इस ट्रेड में आई वुड हैव स्टेड फॉर सम मोर टाइम, तो देन आई वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल. लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती है कि वेदर आई कैन सिट इन दैट ट्रेड और नॉट फॉर सम मोर टाइम. सबसे बड़ा है कि कुछ देर और रुकने के लिए उस ट्रेड में मेरे को क्या चाहिए. उस ट्रेड में कुछ देर और रुकने के लिए आई नीड अ करेज कि यार ठीक है, अगर मैं इस ट्रेड में और रुकता हूं तो जो लॉस होगा वो यहां से बढ़ेगा नहीं. इन केस मेरी पोजीशन अनहेज्ड है और लेट अस से स्पेशली वो सेलिंग पोजीशन है, तब वो लॉस अनलिमिटेड होना शुरू हो जाता है. और देन डेफिनेटली बड़े से बड़े ट्रेडर को भी वो करेज नहीं आता कि यार इसमें मैं रुक पाऊं, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस मींस कुछ भी हो सकता है. जितना मैंने पैसा डाला हुआ है उससे ज्यादा भी मेरी कमिटमेंट उसमें बन सकती है. तो इसके लिए करेज कभी नहीं आता कि यार इस ट्रेड में रुकूं. लेकिन जैसे ही मैंने उस ट्रेड को हेज कर लिया, मेरे को पता है यार एक लिमिट के बाद देयर विल नॉट बी एनी लॉस, देन आई कैन वेट कि ठीक है, फॉर अ शॉर्टर पीरियड आई हैव गॉन रॉन्ग, but otherwise for let us say for few more hours और for few more days मेरा जो थोड़ा सा व्यू था वो शायद ठीक हो जाएगा और मेरा ट्रेड ये ठीक हो जाएगा. वैसे भी अगर मैंने हैज कर ली तभी वो करे जाता है कि यार यहाँ से ज्यादा तो मेरा रिस्क है नहीं है, तो आई कैन सिट इन द ट्रेड. वंस आई नो कि आई कैन सिट इन द ट्रेड, आई कैन वेट, आई विल हैव माइंड स्पेस टू ट्रेड some other strategy also which can be a contra trade to my existing trade. तो इस कारण से स्पेशली मेरे जैसे जो डरपोक ट्रेडर होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ हैजिंग करके चलते हैं. और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर आप बहुत ज्यादा हैजिंग करके चलते हो तो आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं आता, विच इज अ फैक्ट, राइट. प्रॉफिट भी नहीं आता, लॉस भी नहीं आता. नाउ ये एज अ ट्रेडर हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस का रेशो में
खेलना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ओके, इफ आई एम डूइंग अ हेज ट्रेड, मेरा रेंज है कि ओके आई कैन मेक प्लस 5-6% और आई कैन लूज 1%। सो मेरा रेंज क्या हो गया फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप, -1 to +6%। तो आई नो दैट ओके वट एवर ट्रेड आई हैव डन, मेरा इसमें ज्यादा से ज्यादा -1% लॉस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी 6% ही होगा। दूसरा एक ट्रेड हो जाता है कि नहीं यार, लेट मी टेक द रिस्क, और आएगा तो हो सकता है मेरे को 20% आ जाए, 30% हो जाए, और जाएगा तो हो सकता है 10% चला जाए। तो वहां पे मेरा रेंज क्या हो गया, -10 to +20। सो ये ट्रेडर टू ट्रेडर नथिंग इज यू सी गुड और बैड, वॉट एवर इज कंफर्टेबल विद यू, जिस चीज के साथ आप खुद कंफर्टेबल हैं वही ट्रेड हमेशा अच्छा होता है। कुछ लोग कुछ ट्रेडर्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कि ठीक है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद -10 एंड +20, और कुछ ट्रेडर कंफर्टेबल होते हैं कि -1 से लेके +5-6% तक। तो मैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर हूँ कि ठीक है, मेरे को प्रॉफिट थोड़ा कम चलेगा लेकिन मेरे को लॉस नहीं चाहिए, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स कई बार क्या हो जाता है कि कंसिस्टेंटली देयर कैन बी फ्यू ट्रेड्स विच आर गोइंग अगेंस्ट यू, एंड इन केस दोज ट्रेड्स गोइंग अगेंस्ट यू consistently are taking away too much of your capital, then you start feeling यार ये कहाँ पे मैं फंस गया, और ये तो सब कुछ बड़ा स्पेकुलेशन है, एंड थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, मार्केट्स आर वेरी बैड, मार्केट्स आर वेरी क्रूअल, देन दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स स्टार्ट कमिंग। तो इन्हीं सब चक्रों में हमेशा इट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर कि अपने ट्रेड्स को हेज करके चलो। अगर इनिशियली वी आर टेकिंग अ व्यू कि ठीक है नीचे जाएगा तो नीचे का क्या ट्रेड ले सकते हैं, क्या मैं कन्वर्शन रिवर्शन खेल सकता हूँ, क्या मैं कोई क्लोज स्ट्रेटजीज कर सकता हूँ, क्या मैं ओपन स्ट्रेटजीज कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा व्यू ठीक भी होने लगा या गलत भी होने लगा, बिफोर द एंड ऑफ द डे, बिकॉज यू नेवर नो नेक्स्ट डे मार्केट कैन बी लाइक, इफ आई डू मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स इन निफ्टी, नेक्स्ट डे जो एक हमेशा फियर यही रहता है कि यार नेक्स्ट डे देयर कैन बी अ 200-300 पॉइंट्स गैप अप और गैप डाउन। तो इसके लिए कोई भी ओपन ट्रेड मत छोड़ो, एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट हेजिंग करके चलो, सो दैट यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल इन द नेक्स्ट डे ऑल्सो, राइट। तो इन्हीं चीजों पे वी विल लाइक टू टॉक इन केस यू हैव एनी ट्रेड्स एंड यू वुड लाइक टू give your points or would like to discuss anything. I would love to hear all of you, and if you have any trades where you want that okay, what kind of hedge can I do, और क्या मैं कोई hedge कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, I would love to answer those questions also. So anybody who is willing to take the topic further, please go ahead and hold on the take the mic, आप मेरे को request भेजिए and we will definitely take your questions. Okay, Mr. Pratap. Mr. Pratap, you can ask your question, sir. Mr. Pratap, you need to unmute yourself and ask your question. Sir, can you hear me, sir? Yes, yes, we can hear Good you, evening, sir. Good evening. Good Sir, evening. जैसे लास्ट मंथ में आई हैव टेकन अ डबल डायगोनल कैलेंडर। दिस इज सर दिसंबर में, दिसंबर और जैन सीरीज का मिला के डबल डायगोनल कैलेंडर लिया था मैंने। विक्स उस Okay. टाइम में काफी कम चल रहा था। आई थॉट कि बढ़ेगा एटलीस्ट जैन में, बट ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ जैन तक कम होता ही जा रहा था। एंड हाउ टू एडजस्ट द कैलेंडर सर डबल डायगोनल, बिकॉज अब मैं मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा कॉल्स या पुट सेल करने के अलावा मुझे आई डिडंट फाइंड एनी मेथड टू एडजस्ट इट, विक्स जब कम होता जा रहा था कैलेंडर में। प्रताप जी, आप कैलेंडर की बात कर रहे हो या डायगोनल, दोनों अलग अलग डबल चीजें हैं। डायगोनल देखिए, कैलेंडर अगर सर। नो, either it can be double calendar or it can be double diagonal. डबल डायगोनल कैलेंडर और कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है, कैलेंडर में अगर आपकी बाइंग स्ट्राइक प्राइस और सेलिंग स्ट्राइक प्राइस वो सेम होती है। अगर आप उन दोनों में गैप रखते हो, मान लो लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, और मैंने कॉल में दिसंबर की कॉल 18,500 की सेल कर दी और जनवरी की 18,500 की खरीद ली, तो ये कैलेंडर कहलाता है। हाँ सर। लेकिन इसमें मेरा कोई भी हॉरिजॉन्टल इसमें मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल का मतलब टाइम गैप है कि मैंने सेल किया हुआ है दिसंबर का, बाय किया हुआ है जनवरी का, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कुछ नहीं है।
डायगनल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीजें होती है, एक्सपायरी भी डिफरेंट होती है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो 18,500 का मैंने सेल कर दिया और 18,700 का जनवरी का बाय कर लिया, तो ये डायगनल बना। वही दिया था सर, 500 पॉइंट्स डिफरेंस में लिया था मैंने, ओके, तो बिकॉज इसमें सबसे प्रीमियम्स बड़ी थोड़ा मैच बात करना चाहता था, तो मैंने ज्यादा दूर रखा था। रत्नेश जी, सॉरी प्रताप जी, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें एक बेसिक स्ट्रेटजी का अगर पता हो ना कि कौन सी स्ट्रेटजी कब यूज करनी है। जैसे कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटजी है जो कि तब यूज करनी है जब हमारे पास विक्स लो है, क्योंकि ये एक वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटजी है। लेकिन उसका ही एक अल्टरनेट है डायगोनल स्प्रेड। हमें लगता है कि डायगोनल स्प्रेड बड़ी अच्छी है, लेकिन डायगोनल स्प्रेड स्ट्रेटजी कभी भी लो विक्स में यूज नहीं करनी, बिकॉज अगर मैंने 500 पॉइंट्स का गैप दे दिया तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को अपना रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे आप अपना ट्रेड बताओ तो मैं उस ट्रेड को सुन के बता सकता हूँ कि उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड था आपका। सर मेरा उस टाइम जब मैंने लिया था, विक्स सर का तकरीबन 13 का करीब चल रहा था। विक्स तो बिल्कुल और लो था, विक्स विक्स बिल्कुल लो था, लेकिन हाँ सर। डायगोनल स्प्रेड लो विक्स की स्ट्रेटजी शायद नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था। ओके आप ओके। अपना ट्रेड बताओ, आपने ट्रेड क्या लिया था, अगर अगर याद हो हल्का फुल्का, मतलब उसके स्ट्राइक सर, जैसे मैंने जैन का जो एक्सपायरी का स्ट्राइक्स था वो 19,000 के करीब लिया था मैंने कॉल साइड पे। ओके, और पुट साइड पे याद नहीं सर, 16,500 लिया था या कौन सा नहीं लिया था। वो इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आप कॉल में जैन का 19,000 बाय किया था तो दिसंबर में बेचा क्या था? 18,500 सर, हाँ, तकरीबन वो अब 500 आपने पॉइंट क्या का किया? गैप रखा था मैंने। आपने अब 18,500 का बेच दिया, 19,000 का ले लिया, और इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा क्रेडिट मिला हो या ना भी मिला हो। क्रेडिट सर, वो स्ट्राइक्स ज्यादा थे सर, जैन का जो स्ट्राइक्स था वो वही महंगा था। ज्यादा थे। हाँ हाँ, वो डीबीटी बना था। तो 500 पॉइंट का गैप लेकर भी मैंने अगर डेबिट बनाया तो वो बिल्कुल भी अच्छा डायगोनल स्प्रेड नहीं है, पहले बात। राइट। दूसरा ओके बात, सर। जब आप डायगोनल स्प्रेड बना रहे हो तो आपने सीधा सीधा इसमें, मान लो मैं कहता हूँ कोई क्रेडिट या डेबिट नहीं था, जितने में मैंने 18,500 का सेल किया उतने में ही मान लो 19,000 का मेरा आ गया। इन दैट केस ऑल्सो आई एम टेकिंग अ ह्यूज रिस्क ऑफ 500 पॉइंट्स। यस अगर सर। निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट्स रिस्क इज एबनॉर्मल रिस्क, मतलब ये, इसको मैं मानता ही नहीं कि ये एक अच्छी हेज स्ट्रेटजी है। इसमें ओके मतलब सर। अगर मार्केट बुलिश हो गया तो बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल यू सी हम बहुत सारा और पैसा डाल दें। देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि एडजस्टमेंट मुझे पता होती है, लेकिन क्या वो एडजस्टमेंट ऐसी है कि मेरे को अगर मैंने 1 लाख का ट्रेड किया मेरे को 4 लाख रुपए और डालना पड़ेगा, तब वो एडजस्टमेंट मीनिंगलेस है। क्योंकि सबके हाँ पास सर। लिमिटेड पैसा होता है, मनी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ सर। मैं आपको कहूँ कि यार 18,500 का मैंने कॉल बेचा हुआ है, 19,000 खरीदा हुआ है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये ट्रेड ने नुकसान देना ही देना है मेरे को। हाँ तो सर, विक्स उसमें आउट मैं, कम होगा। हाँ तो मतलब विक्स छोड़, एक बार के लिए आप विक्स छोड़ भी दो, आप मानो ओके कि सर। विक्स वैसा ही रह गया। राइट सर। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड होल्ड करना, मैं आप अभी आपका इस बात पे। सॉरी सॉरी प्रताप जी, एक छोटा सा इशू आ गया था। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि हमें पहले बेसिक स्ट्रेटजी का ये पता होना चाहिए कि डायगोनल स्प्रेड मेरे को कब बनाना है। डायगोनल स्प्रेड जनरली हम तब बनाते हैं जब थोड़ा सा विक्स ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि वेगा इसमें भी पॉजिटिव होता है। अब अगर मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया और मैं बहुत ज्यादा मनी मैनेजमेंट भी नहीं उसमें कर सकता, तो कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। उसमें एक ही एडजस्टमेंट चल सकता था, जैसे आपने दिसंबर का सेल किया और जनवरी का बाय किया, और जैसे ही आपकी सोल्ड प्राइस के ऊपर जाने लगा दिसंबर का ट्रेड, आपको वीकली वीकली उसको रोल ओवर करना है। जैसे कि आप 18,500 का अगर आपने सेल किया, राइट, यस सर। और आपको फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का 18,650 या 700 का सेम प्राइस पे मिल जाता है, आपको वहां लेके जाना है। आपने अपना डिस्टेंस 300 पॉइंट कम कर दिया। उसके बाद आप अपना सेकंड वीक में 18,700 को 18,800, 850, 150 पॉइंट्स तक आप ऊपर चले जाते हो विदाउट लूजिंग एनी प्रीमियम। और ऐसे ओके करते सर। करते आपको क्या करना पड़ेगा, उस डायगोनल स्प्रेड को
कैलेंडर स्पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो लॉस होगा। कई बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है। अगर मार्केट बहुत तेजी से भाग गया तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो डायगोनल स्प्रेड का सबसे अच्छा जो एडजस्टमेंट होता है वो यही होता है कि अगर आपके उसके बीच में एक्सपायरीज हैं, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? एक्सपायरीज का मतलब आपने दिसंबर एंड की सेल किया और जनवरी एंड का खरीद लिया। अब वीकली दिसंबर एक्सपायरी एंड और होंगे ना? जनवरी एंड के बीच में 4 वीकली एक्सपायरीज हैं। यस सर। तो उन 4 वीकली एक्सपायरीज को आप रोल ओवर कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बिल्कुल ही मतलब इस ट्रेड में 19,500 नहीं भाग गया, तब तो रोल ओवर भी नहीं होगा, तब तो लॉस ही हो गया। लेकिन अगर मार्केट 18,600 7 इस तरह की रेंज में, इवन 19,000 भी है, तो आप रोल ओवर कर करके उस ट्रेड से विदाउट एनी लॉस बाहर आ सकते हो। राइट सर। सर इसमें यही किया था मैंने। पहले मैं वीकली रोल ओवर कर रहा था कि एक टाइम अचानक झटका सा मुंह आया था एक दिन, तो मेरा वही जितना मैंने स्टॉप लॉस रखा था उससे बाहर जा रहा था। लॉस तो मैंने कट कर दिया था इन लॉस। बट तो आई आपने गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट आपने योर जब पॉइंट। आपने जब कट किया और उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद 2 दिन बाद अगेन वो मतलब अगर ट्रेड में रुकता तो वो बिना लॉस का एग्जिट हो जाता था, माइनर सा प्रॉफिट में एग्जिट होता था। तो वही मेरा मेन पॉइंट यही था कि हमने जब ट्रेड बनाना है, अगर 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 मैं आपकी जगह होता, राइट, मैंने 500 पॉइंट का रिस्क लिया, मतलब मैं उस ट्रेड में 25,000 रुपीज लूज करने की क्षमता रखता हूँ, तभी रिस्क ले, क्योंकि मैं चाहूंगा यार मैं बैठ जाऊं। शायद अदानी ग्रुप का फॉल के कारण वो फॉल हो जाता तो आपको शायद प्रॉफिट हो जाता, है ना? तो जब आपने ट्रेड लिया था उसी टाइम आपका रिस्क डिफाइन हो गया था कि आप इस ट्रेड में बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे। 500 points for a diagonal spread, definitely, I will say it's a very high risky trade. राइट सर, राइट सर, राइट सर, गॉट द मैसेज। Thank you, Mr. थैंक यू Pradhan. सर, थैंक यू Thank सर। you. And we have with us my very good friend, Mr. Santosh Pasi. He needs no introduction. संतोष जी, मैं वही कह रहा था कि हेजिंग टेक्निक्स बेसिकली बाइंग में भी यूज हो सकती हैं, हेजिंग टेक्निक्स सेलिंग में भी यूज हो सकती हैं। इसी के बारे में प्रताप जी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट डायगोनल स्प्रेड। आई वुड लाइक टू टेक सम इनपुट्स फ्रॉम यू कि अगर जैसा डायगोनल स्प्रेड बनाया उन्होंने, एंड आई नो यू आर एक्सपर्ट इन दीज काइंड ऑफ स्प्रेड्स, तो uh, कैसे वो और क्या कर सकते थे कि उसमें उनको कोई लॉस ना हो। मैं जस्ट न्यू एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस, और मेरे को भी मैनेज करना नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। मिस्टर पासी, कैन यू स्पीक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? थिंक नाउ आई एम एबल टू रिजॉल्व दैट इशू। यस पासी सर। हाँ जी सर। We are so bad in technology, although we are fascinated by this thing, but bad in technology, so do not know how to use it much. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी ट्रेड में एंट्री मिल गई। अरे नहीं, Yes. आप इंजन है, हम आपके पीछे। सो नॉर्मली इफ डायग्नोस में आपने कर रखा शुरू में, तो अभी दो चार चीज होता है। एक तो होता है कि आपका T0 प्लस क्या है और भाई पे एक्सपायरी पे क्या है। तो अज्यूम कीजिएगा आपने शुरू में ट्रेड दे रखा हुआ है, तो मे बी आपने का 500 पॉइंट का रखा, तो जैसे सजी ने कहा कि 500 इंटू 25 आप 25,000 500 इंटू 50,000 रुकने को तैयार हो तो रखिए। बट एक चीज ये भी कर सकते हो कि आप कुछ एडजस्टमेंट ऐसा कर सकते हो कि पहले दिन के लिए मुझे पता है कि इतना लंबा नहीं जाएगा, तो उसमें आई एम हैप्पी कि 500 पॉइंट रखो। उसके दो चार दिन के बाद आप उसको इंश्योरेंस को या कुछ इंश्योरेंस को ऐड करके उसको छोटा कर सकते हो that way. So initially take it a higher risk, and as you move close to the expiry, try to reduce that. That could be one possible alternative.
फैंटास्टिक। सो जो मैं कह रहा था उसका बिल्कुल रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि पहले मैंने 18,500 बेच दिया, 19,000 खरीद लिया। जैसे जैसे मेरा टाइम मार्केट में निकल रहा है तो आई कैन ब्रिंग 19,000 क्लोजर टू 18,500, उसको धीरे धीरे 18,900, 18,800, 18,700 करता रहूंगा। होगा क्या कि जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे ऑल दीज कॉल्स विल बी चीपर। तो बेसिकली क्या है कि 18,500 को सेल करने के बाद वी आर बाइंग अ हेज एट 19,000। तो मैं अपने हेज को और क्लोज लाता रहूंगा, विच इज अ वंडरफुल एडजस्टमेंट। राइट, मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है? यस सर, एग्जैक्टली भाई। सो इनिशियली हम चांस लेते हैं और एज वी गो क्लोज टू द एक्सपायरी तो हमें गैमा से भी बचना है। तो ये अप्रोच सबसे बेस्ट लगता है कि आप शुरू में चांस लीजिए, उसके बाद तो स्लोली स्लोली वो एक्सपोजर को कम कीजिए। एंड फॉर एग्जांपल लाइक ये जो बजट का एक्सपायरी था, तो उस समय मैं एक्चुअली लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहा था, तो वो काफी खतरनाक होता है। वीडियो को स्टार्ट होता है, थर्सडे को जाता है। तो इस टाइम मैंने बोला ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अक्टूबर में किया था, उसके बाद हमने किया ही नहीं। ये कभी वंस इन अ ब्लू मून हम करते हैं। तो इस समय ओके। जनता भाग जाती है ट्रेडिंग से, और मैं यहाँ पे लाइव लेता हूँ। ठीक है। तो हमने फ्राइडे को ट्रेड लिया था जहाँ पे हमने हाई एक्सपोजर लिया था। मंडे हमने कुछ और ट्रेड ऐड किया, ट्यूसडे हमने कुछ और ऐड किया। जैसे ही वेडनेसडे आ गया हमने सबका एक्सपोजर कम कर डाला था। इनफैक्ट हमने ऐसा एक्सपोजर कम किया कि हमारे जितने भी चार ट्रेड थे, चारों के चारों ट्रेड हमारे क्या हो गए, नो लॉस जोन में आ गए थे। टू बी ट्रू प्रिसाइसली हमारे जो स्ट्राइक थे वो 4500 का पुट शॉर्ट था, 4400 का पुट लॉन्ग हो गया था, इतना हमने छोटा दिया था। और हाइयर साइड में 4900 एंड 4941। तो ये हमारा 400 पॉइंट का ही हमारे पास रेंज रह गया था, लेकिन एब्सोल्युटली नो लॉस हो गया था, क्योंकि इंश्योरेंस शुरू में दूर था, बाद में हम काफी करीब लेके आ गए। इनफैक्ट व्हेन बजट के दिन जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो उसमें काफी क्रेजी मूव आया। इनफैक्ट शुरू में मार्केट नीचे गिरा तो कुछ पार्टिसिपेंट ने कहा कि संतोष एक काम कर सकते, कुछ और कर सकते हैं। मैं बोला एक ऑप्शन है कि हम 40,900 को भी बिल्कुल करीब मिला दे 4500 के बीच में, बट मुझे करना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेड में लॉस होगा ही नहीं। सो वी आर हैप्पी, विल बी काम। तो हमने इनफैक्ट एक्सपायरी डे का कुछ अलग से ट्रेड लिया, लेकिन जो अर्लियर चार ट्रेड थे हमने छुआ ही नहीं। और बिलीव मी, आपने देखा कि एक्सपायरी कहाँ हुआ, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच। तो तो वही इनिशियल चांस और बाद में धीरे धीरे कम कीजिए। राइट। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि अगर हम लोग पास वो करेज है कि हम ट्रेड में रुक सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वर्स्ट पॉइंट पे काटने के बजाय हम अगर थोड़ा और वेट करते हैं, हमेशा ऐसा होता है कि यार थोड़ा और वेट करते तो बड़ा अच्छा रहता ट्रेड। तो वो थोड़ा वेट करने का करेज तभी आता है अगर मेरा पोजीशन है और अच्छे से हेज्ड है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वही पोजीशन हम उसी एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो, हम उसी बोट पे थे। हमारा पोजीशन ऐसा हेज था कि हमें लॉस था ही नहीं ट्रेड में। तो हमने बोला कुछ करना ही नहीं है अब, या तो मुझे मिनिमम जो प्रॉफिट है उतना आ जाएगा, तो वरना मैक्सिमम हाँ। प्रॉफिट पोटेंशियल के बीच में आ जाएंगे। तो हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, वो कुछ ना करना अच्छा रहा। ओके ओके, कुछ ना मतलब कुछ ना तभी कर सकते हैं जब ये पता हो कि यार इसमें ज्यादा से ज्यादा डैमेज कुछ नहीं हो सकता। अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग ऐसे बैठ जाए, बोल दें कुछ नहीं करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, इनफैक्ट अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल करना तो मैं बोलूंगा शुरू में आप शॉर्ट स्ट्रैंगल कीजिए पहले दिन, हम्म। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से इंश्योरेंस फिर इंश्योरेंस को ऐड कीजिए। उसके बाद फिर इंश्योरेंस को धीरे नजदीक लाते जाइए। तो मे बी इनिशियल आपका पूरे महीने का ट्रेड है, तो मैं इनिशियल टेक अ चांस, अब ले लीजिए शॉर्ट ट्रायंगल लंबा लंबा, क्योंकि उस समय इंश्योरेंस लेंगे तो काफी महंगा पड़ेगा। जैसे ही आप हाँ। 3 दिन सर्वाइव कर गए, उसमें हमें पता है कि इस समय अगर मैं इंश्योरेंस को ऐड करूंगा तो उसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली इनिशियली मैं लेता तो उससे सस्ता होगा, क्योंकि डेफिनेटली उसकी थीटा वैल्यू थोड़ी सी हमारे फेवर में आ जाएगा। और मार्केट बस है कि T+0 का एक प्रॉब्लम हो सकता है, T+0 या T+1 का, अगर जैसे आपने ट्रेड लिया और नसीब हम्म। खराब लोअर सर्किट अपर सर्किट लग गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। अदरवाइज इवन ये भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कम रहती है। देखो ऐसा अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत कम लगते हैं, लेकिन हाँ हमेशा एक एक तरह से ट्रेड को रिस्क डिफाइन करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हमारे सारे अब हम लोग तो अल्गो करते हैं, आप जानते हो। अभी आप अल्गो में इतने सारे ऑर्डर जाते हैं, तो हम तो बिल्कुल भी अनडिफाइंड जा ही नहीं सकते। राइट राइट। एब्सोल्युटली नहीं। इनफैक्ट हम बोलते हैं हमारा धर्म है, विदाउट इंश्योरेंस जाना ही नहीं। अच्छा, और मैं आपका ना संतोष जी एक और व्यू लेना चाहता था। यू सी द वे आजकल मतलब हॉट टॉपिक है कि यार कहाँ पे जाके रुकेगा अदानी वाला, वट एवर इज द इशू। मतलब डू यू थिंक इट इज ऑलरेडी प्लेड आउट 100% और स्टिल ऑन डाउनसाइड, स्टिल गुड अमाउंट ऑफ डाउनसाइड इज स्टिल देयर? नहीं, आई डाउट कि ऑलमोस्ट वन टू थर्ड तो वाइप आउट हो चुका हुआ है।
ठीक है, तो उसके कुछ बोलते हैं ना हमारे ऑप्शन के लैंग्वेज में, उसके कुछ तो इंटरेस्टिंग वैल्यू है, तो ऑलमोस्ट उसके करीब में आ गया है। रियली डाउट कि अभी और नीचे जाएगा, मे बी छोटा मोटा 5% का ऊपर नीचे मूव हो सकता है, बट आई डाउट कि उससे नीचे जा पाएगा। तो उससे जो वायरल इफेक्ट है कि यार अदानी स्टॉक्स आर गोइंग डाउन एंड देन उससे रिलेटेड मे बी फ्यू बैंकिंग स्टॉक्स, ऑल्दो दिस हैज बीन क्लैरिफाइड इवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत ज्यादा बैंकिंग का एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एक एक आप कहते हो ना स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि बैंकिंग स्टॉक्स भी उसके कारण थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, और इवन एक मार्केट का जो बड़ा हाथी है LIC एटसेट्रा, जिसका कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपोजर है, और वो अपने साथ उनको भी लेता आ रहा है। अगर पीस देखें या जो भी लोग फंडामेंटल देखते हैं, मैं तो बिल्कुल स्टॉक्स में काम नहीं करता, लेकिन अगर उस तरह से देखें तो डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस कैन लाइक गो डाउन फर्दर ऑल्सो, तो उससे कोई स्नोबॉल इफेक्ट आएगा कि उससे निफ्टी भी वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, या बैंक निफ्टी को इफेक्ट आएगा? पहली बात कि जैसे कि एफएम ने भी बोल दिया है कि एक्सपोजर कम है, प्लस जो LIC का ओवरऑल एक्सपोजर है अदानी में, इट इज इवन लेस देन 1% आज की तारीख में, ठीक है। तो जितना भी LIC का पोर्टफोलियो है उसमें हार्डली जो कंट्रीब्यूशन अदानी का इज अराउंड 1 और स्लाइटली लेसर देन 1, ठीक है। तो इट शुडंट बी अ बिग इम्पैक्ट, आई डोंट थिंक अभी। प्लस क्या होगा कि एक जो भी हो चुका हुआ अभी, उसके बाद हमें कुछ टाइम भी मिला हुआ है, ठीक है, राइट। ऑलमोस्ट अभी प्लस ये 2 दिन और भी मिल रहा है, तो थोड़ा काम डाउन हो जाने चाहिए, आई थिंक सो। और अगर काम डाउन नहीं भी होता तो उसकी एटलीस्ट निफ्टी से, क्योंकि मेरा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं आई एम ऑलवेज 90% ऑफ माय ट्रेड्स आर इन निफ्टी ओनली, तो एक तरह से उस फॉल की निफ्टी से डीकपलिंग हो चुकी है अदानी ग्रुप की, कह सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, तो काफी हद तक हो चुका हुआ है। क्योंकि हुआ क्या था कि जिस दिन बजट आया एंड बिकॉज उसमें पर्सनल इनकम टैक्स पे अच्छा खासा फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम वो दिया, तो एवरीबॉडी वाज वेरी गंग हो कि यार चलो बजट बड़ा अच्छा है, बिकॉज और बाकी चीजें बहुत ज्यादा हम लोग को भी समझ, बट देन वी सेड यार इनकम टैक्स वगैरह कम हुए तो बजट इज एक्सीलेंट, तो बजट के कारण वी सॉ मार्केट गोइंग टू ऑलमोस्ट 18,950 17,950 लेवल्स, और उसके बाद सारा बजट का यूफोरिया निकल गया बिकॉज अदानी स्टॉक्स अगेन स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन। उसके बाद मैं जो देख रहा हूँ कि नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अदानी स्टॉक्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट मार्केट ने ठीक ठाक सा इंप्रूवमेंट कर दिया, तो वहां से इज इट सेफ एज यू सेड कि काफी हद तक डीकपलिंग हो गया, थोड़ा बहुत और अदानी का स्टॉक अगर नीचे भी जाता है तो इट मे नॉट इफेक्ट निफ्टी दैट बैडली कि 17,950 से आप एक बार 17,300 जाके दिखा दो एक ही दिन में। नहीं नहीं, वो मुश्किल है अभी, क्योंकि हमें जो मेजर नंबर्स है मैं वहाँ पे थोड़ा सा फोकस रख रहा हूँ, स्पेशली 17,500 और मे बी लाइक 17,000 काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो 500 वाले हैं नंबर्स, उस पर ज्यादा फोकस है। और जो फ्राइडे जो थर्सडे जो गिरा हुआ था, उसमें थोड़ा सा हाथ जो यूके यूरोपियन बैंकर्स है क्लोज सोर्स वाले जो उनके अनाउंसमेंट के कारण हुआ था। आई डाउट कि अभी ऐसा कुछ और भी अनाउंसमेंट आ सकता है, जितना बुरा होना तो हो चुका हुआ है, दैट इज व्हाट माय टेक। मे बी जस्ट another 5% के नीचे शायद जा सकता है, बट उसके ऊपर मुझे मतलब या अदानी अदानी 5% या आप निफ्टी 5% कह रहे अदानी अदानी की बात करो, निफ्टी मुझे नहीं लगता जाएगा अभी। हैं? निफ्टी अभी नहीं लगता कि कोई जाएगा, और वैसे मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट निफ्टी के नाउ ऑल द बैड न्यूज इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, अगेन वी हैव अ RBI पॉलिसी राइट कमिंग नेक्स्ट वीक। हाँ, तो अब एक ऑडियो हमें पता है कि यूके ने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो हल्का सा वो हो जाएगा, मतलब ऑडियो जो होना था वो फ्राइडे को ही हो गया रहेगा इम्पैक्ट उसका, मोस्ट लाइकली। ओके ओके, या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इनफैक्ट ओके सो वेट कर लूंगा, 17,000 गया तो भी मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा निफ्टी 20 बाई कर लूंगा। ओके, सो इनफैक्ट अभी जब 17,500 के जस्ट जैसे ही टच किया था, तो आई बॉट सम कुछ 20%, जितना मुझे बाई करना था उसका 20% ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ मैं, जब 17,500 के करीब गया था। सो जो बड़े नंबर्स होते हैं वो उसको मुझे ज्यादा पसंद है, निफ्टी 20 बाई करना। ठीक है, मतलब गिरे तो जब भी ओके, गिरे 17,500 पे ना गिरे 17,000 पे या जावे। अच्छा तो वहाँ पे you see it as an opportunity to buy more Nifty Bs actually. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि इनफैक्ट जब गिरा उसके बाद भी 2 दिन के बाद वापस निफ्टी 500 पे आया, तो बट आई डिडंट टुक इट, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक एंट्री हो चुकी थी 17,500 पे। Okay, okay. So otherwise, you see, our today's topic is basically we want to see, listen to people, and in case उनको hedging करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो एंड दे आर नॉट F&O स्टॉक्स, ऑब्वियसली
कोई बहुत ज्यादा hedging पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप F&O स्टॉक्स में काम कर रहे हो और आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत सारी hedging पॉसिबल है. तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट anybody who is having any questions on your trades or anything you want to understand. Mr. Pasi is also there, that how you can hedge your trades if there is any stuck up trade. कोई ऐसा ट्रेड आपको लग रहा है सर इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे प्रताप जी ने अपना डबल डायगोनल स्प्रेड के बारे में बात किया. इफ एनीबडी हैज एनी सच क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री एंड go ahead and ask that question and take it as an opportunity that okay, some practical hedging techniques we will be telling you in case of any stuck up trades. आई थिंक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, काफी रिक्वेस्ट आया होगा शायद. मेरे को करना थोड़ा सा, मैं स्लो हूं बट मैं कर रहा हूं. आई थिंक मिस्टर सौरभ राज इज देयर. मिस्टर सौरभ, आई एम अप्रूविंग दैट and please go ahead with your question, sir. Mr. Saurabh and Mr. Ravi. Mr. Saurabh, first you please go ahead and put your question, sir. Yeah, I am outside, so I will be quick. मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँ. तो मुझे ये जानना है कि सपोज जो निफ्टी ने रिवर्सल लिया, अभी मूव्स काफी वॉयलेंट थे, ये मैं मानता हूँ, बट जो निफ्टी ने रिवर्सल लिया या फिर कहीं से गिरावट होती है या निफ्टी बढ़ता है और जब वहां से रिवर्सल आता है, तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं डायरेक्शनल सेलिंग कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि हाँ ये फैक्टर्स आ गए हैं, तो अब मुझे अपने पोजीशन को एग्जिट करना है या ट्रिम डाउन करना है. बस यही है मेरा क्वेश्चन. तो आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिए हैं एंड लेट अस से आपने कोई बेरिश ट्रेड लिया और मार्केट बुलिश हो जाती है, तब उस वक्त मेरे को क्या ध्यान रखना है, या उस वक्त मेरे को hedging करनी है कि नहीं करनी. राइट. तो उसमें जो मेरा व्यू पॉइंट यही है कि जो भी ट्रेड हम करते हैं स्पेशली ऑप्शंस में, वो ट्रेड का क्या हाल होगा. जैसे वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन टेबल पे कैसी प्रिपरेशन है, उससे ऑपरेशन का क्या रिजल्ट निकलेगा पता चल जाता है. तो आपका एक थॉट प्रोसेस जरूर होना चाहिए कि इवन इफ लेट अस से आप बेरिश हो और आपने कॉल सेल कर दिया, लेकिन आप हमेशा ये मन में लेके चलो कि यार अगर मेरा जो व्यू है वो गलत हो गया तो मेरा प्लान क्या है. दो प्लान हो सकते हैं. एक प्लान ये हो सकता है कि यार नहीं, आई विल गो विद द ट्रेड, लेकिन मैं उसको हैज करूंगा. जैसे आपने कॉल सेल किया तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने लगी, कॉल में छोटा मोटा फॉर टाइमिंग लॉस आने लगा, तो मैं उसके ऊपर के स्ट्राइक का कॉल खरीद कर उसको हैज कर दिया. एक तो ये होता है. दूसरा, एंड देन यू विल ऑब्वियसली वेट इन दैट ट्रेड, राइट. दूसरा ये हो सकता है कि नहीं यार, मेरा व्यू वाज सॉर्ट ऑफ इंट्राडे, और तो इंट्राडे ट्रेड्स में आई विल से कि इट इज ऑलवेज बेटर, अगर छोटे मोटे लॉस में जहां पे मेरा लगा कि यार मेरा व्यू तो बेरिश था और मार्केट बेरिश होकर साइडवेज भी नहीं है, बुलिश होती जा रही है, तो वहां पे इट मेक सेंस टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड आल्सो. लेकिन एक प्लान अगर मन में शुरू से है ना, जैसे इवन मैं बहुत सारी 3 लेग 4 लेग स्ट्रेटजीज करता हूँ, जैसे आयरन बटरफ्लाई वगैरह करता हूँ, वहां पे भी हालांकि एवरीथिंग इज इंट्रिंसिकली हेज्ड, मेरे को पता है मेरा मैक्सिमम लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक प्लान रहता है कि अगर इस लेवल से मार्केट यहाँ जाएगी ना तो मैं ये वाला एक्शन लूंगा. सिमिलरली अगर आप बेरिश हो तो आपको पता है कि यार अगर ये मार्केट ऊपर चली गई, मेरा बेरिश ट्रेड लॉस में आने लगा, तो मेरे पास दो ही एक्शन है, या तो मैं अपना लॉस बुक कर लूं या मैं थोड़े दिन और ट्रेड में रुकना चाहता हूं तो मैं उसको हेज कर लूं. सर एक फॉलो अप है, ऑप्शन चेन आजकल के मार्केट में रेलेवेंट है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट है. आपको लगता है क्या रेलेवेंट है? इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर संतोष पासी. सर, ऑप्शन चेन क्या है? हैज ऑप्शन चेन लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? हम लोग तो फॉलो करते हैं, ठीक है. सो दैट इज, क्योंकि हमारा जितना भी ट्रेड का मुझे जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस चाहिए है, क्योंकि मैं डायरेक्शन के लिए नहीं फॉलो करता हूँ ऑप्शन चेन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिफाई कि मेरा अपर सर्किट या लोअर सर्किट या ट्रेंड का इस एक्सपायरी का सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा एज ऑफ नाउ. ओके, सो उसके लिए इट डज वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि ये जहाँ पे मैक्स वाई होता है उसे चेंज करना इतना आसान नहीं होता है कि आप 15 मिनट में चेंज करिए, क्योंकि वो काफी बिल्ड हुआ है पोजिशन के हिसाब से, ठीक है. सो फॉर मी दैट इज द मेन पर्पस. आई डोंट कंसिडर कि उसको सपोर्ट दिया जाए या रेजिस्टेंस दिया जाए, उसके हिसाब से आप खुद का रेशियो निकाल लो और इमीडिएटली आप डायरेक्शन ट्रेड ले लो. ये प्रॉब्लम आपको आएगा कि आप डायरेक्शन करने जा रहे हो तो डेफिनेटली तो इश्यूज आ जाएगा, वर्सेस आप नॉन डायरेक्शन करने जा रहे हो जहाँ पे लोअर अपर सर्किट चाहिए तो उसमें चल जाएगा. और उसमें सौरभ आई विल आल्सो लाइक टू ऐड कि जो ऑप्शन चेन है ना, ऑप्शन चेन का रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ है. बेसिकली वहां पता चल रहा है कि कहाँ पे कंजेशन जोन है, लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन को कभी भी यूज कर रहे हैं
टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट वो हमेशा हमें परेशान कर सकता है। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मान लीजिए मार्केट इज एट 17,600 और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का 18,000 पे है और 18,000 वाले कॉल का प्रीमियम इज 50 रुपीज। तो मेरा ये मानना है कि ये सारे ट्रेडर्स ने लेट अस से 50 रुपीज पे बेचा हुआ है, ये कॉल राइटर्स हैं, ये 18,030 18,040 तक तो वेट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन चेंज से आपको ये भी देखना है कि यार हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 और 18,100 में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे ही मार्केट 18,030 40 क्रॉस करना शुरू करेगी तब मेरे को ये देखना है कि क्या मैं अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज देन एक तरह से मार्केट का ना गोल पोस्ट चेंज हो जाता है। हमारा सबका अंडरस्टैंडिंग यही है कि यार हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट पे रेजिस्टेंस होगा, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट पे सपोर्ट होगा, राइट सौरभ जी? यही अंडरस्टैंडिंग है। राइट। लेकिन मार्केट में हमें पता है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी टूटते हैं और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनते हैं। तो अगर ये कंफर्म ही हो जाए कि यार हाईएस्ट सपोर्ट टूटेगा नहीं, यार हाईएस्ट रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं, फिर तो मार्केट ही नहीं रह जाएगी। वो एक फॉर अ शॉर्ट पीरियड यस डेफिनेटली वो एक बॉटलनेक है, लेकिन कई बार देखा गया आजकल की वॉलेटाइल मार्केट्स में कि वो बॉटलनेक भी टूट सकती है। कोई मतलब इट्स नॉट रिटन ऑन स्टोन कि यार अगर 18,000 हाईएस्ट है तो यहां से ऊपर जाएगा ही नहीं, वैसा नहीं है। आप उसको उस तरह से मत लो, बट यस अगर 18,000 और 18,000 एंड 17,500 है तो एक रेंज है, इस रेंज को ब्रेक हो सकता है। तो मेरे को किस तरह से रेडी रहना है कि यार अगर ये रेंज ब्रेक हुई तो मैं क्या करूंगा। राइट। और एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट बी डिस्टर्बिंग यू अगेन। क्या प्रीमियम पैरिटी एक ट्रस्टेड मेथड है मार्केट को अप्रोच करने का व्हाइल सेलिंग? Premium parity, basically what do you want to say with premium parity, because different people will have different understanding. Like when calls are more expensive than puts of the same ATM, I mean the same strike price. So you are talking about exactly about the price. So when a Right. call is costly, when a put is costly, ये कैसे पता चलता है? I mean, if suppose the Nifty is trading at 17,600 on spot, and 17,600 call is 30 to 40 rupees more expensive than puts. So I mean, if it is at the spot right now, suppose it is trading at 17,620, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं मतलब कई बार मैं ये काम किया है, कई बार नहीं भी किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, वेरी राइट। तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है प्रीमियम पैरिटी का, आप ये कह रहे हो कि यार अगर मार्केट मान लीजिए 17,600 पर ही है और मैं ये भी मान रहा हूँ कि फ्यूचर भी 17,600 पे, बिकॉज ऑप्शन की प्राइसिंग थोड़ी सी फ्यूचर प्राइसिंग पे भी डिपेंडेंट रहती है। तो अगर 17,600 की कॉल 100 रुपीज की है लेकिन 17,600 की पुट 120 रुपीज की है, तो यहाँ पे क्या मेरे को ये देखना चाहिए कि नहीं पुट कॉस्टली है और कॉल सस्ता है? आप यही कह रहे हो? राइट। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये आई विल टेक मिस्टर पासी's ओपिनियन ऑल्सो, बट पहले मैं ये बताना चाहूंगा कोई भी कॉल कॉस्टली है या सस्ता है ये जानने के लिए ये मेथड नहीं होता। जो मैं मेथड यूज करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है। अगर कॉल 100 रुपीज का है और उसकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी लेट अस से, मैं वैसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि उसकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है 21, लेकिन पुट 120 का है लेकिन उसकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है 18, तो मेरे लिए कॉल महंगा है चाहे वो 100 रुपए का है। अगर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी किसी ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा है कंपेयर टू अदर थिंग, जनरली क्या होता है पुट्स की आईवी ज्यादा होती है, राइट? तो अगर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ज्यादा है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी टेल्स मी कि यार वेदर समथिंग इज कॉस्टली और वेदर समथिंग इज चीप। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा है, जब वो बहुत छोटा होता था वो हमेशा पूछता था पापा ये 10 रुपए महंगे हैं कि सस्ते? मैं बोला यार 10 रुपए की कोई चीज है वो महंगी है सस्ती तो ये डिसाइड करके होगा ना कि उस 10 रुपए में आप क्या ले रहे हो, what are you trying to buy? If you're trying to buy let us say a toffee in 10 rupees, मैं कहूंगा थोड़ी महंगी है, लेकिन if you're trying to buy let's say a geometry box in 10 rupees वो बड़ा सस्ता है। तो आपको context बीच में रखना पड़ेगा, तभी कुछ पता चलेगा कि क्या चीज महंगी है क्या चीज सस्ती है। सर
Yes, so I just follow आपको ही follow करता हूँ तो हम लोग का implied volatility के ही हिसाब से we try to identify with that would give us कि यार वो expensive है या fair value है या discounted है. एग्जैक्टली तो मिस्टर संतोष पासी का भी स्टैंप लग गया, इसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। सौरभ जी। हाँ सर। सर आई एम हिज ब्रदर, वी आर बोथ ऑप्शन सेलर्स, सो मैंने भी जॉब छोड़ दी है सर। सो फॉर एग्जांपल, सॉरी टू एंटर लाइक दिस, बट दिस हैज इग्नाइटेड मी. So just to give you a brief, I was working in Bangalore. Now I'm in Patna right now, and I'm trading from here from last 6 years. What I've seen in most of the occasions, sir, that for example yesterday 39,500 का मैंने, sorry to disclose my position as well, put बेचा 76 में और उसका hedge लिया मैंने 38,500. 38,500 का put 26 रुपए में जो खरीदा था hedge के लिए, वो मार्केट 41,000 से 41,500 बढ़ रहा है और उसका हेज का प्राइस बढ़ते जा रहा है। मतलब वो पुट का प्राइस 26 से 35 हो गया। सो दिस कैन, इज इट इंडिकेटिंग दैट ये पुट का प्राइस बढ़ाया जा रहा है और मार्केट इसलिए भाग रहा है? कभी कभी ये होता है सर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स. सो दैट वाज द एग्जैक्ट रियल क्वेश्चन ऑफ Saurav Raj, who is my brother. My name is Gaurav Raj. Any more questions? Hope you have got the answer, Saurabh and Gaurav. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and information. Thank you. Appreciate it. Most welcome. May I request Mr. Ravi, please go ahead with your question, sir. Thanks, sir. So, my question was regarding on the hedging techniques. I'm holding a few positions on Nifty. I had a triangle, again, as few of you were mentioning about the option chain. I also looked at the option chain and also the PCR. So based on that, I got it wrong. I had a triangle. So it was basically for intraday, and the position also was quite, in terms of the quantity also was quite huge. So, but the sudden spike at the end of the day, that took me for a surprise, and I tried to adjust, but it was bleeding. So what I did is I just rolled on from intraday to positional. So I'm carrying it for Monday. I'm not sure, but the again the PCR, whatever the option chain that we look at, the market behaves very differently from whatever. Again, I get a feeling this is the only theoretical. Practically, market behaves very differently. That's the surprise. Again, it took me for a surprise, like as though Adani issue was resolved. The spike, a huge spike that came up was as brutal as what went down. So, I am bleeding for sure. So, wanted to know, in Strangle, what would be the appreciable, maybe if I have to take a stop loss, after I tried with adjustment also. In spite of that, it was brutal. So it's bleeding. Now I didn't want to let go so much of loss. So I thought, okay, I'll take it over for Monday. So usually, typically, because in Strangle they say about 25% or 30% max. In Strangle, after the adjustments, so is there any ballpark number that I can look at if I have to book loss? So can you, if possible, share what are the strike prices for the Strangle? Strike price, okay. It was around, please, sorry, I don't have that handy. Hopefully it must be something close to what, 18,000 and 17,400 or something like that? It was around, the positions of call was around 17,600. So again, I sold. It's not this thing. And also the P, I tried to again move up as the market started moving also. So from 17,400, I came all the way to 17,600, and it's almost very close to straddle now. The C positions are bleeding. So it is a straddle only, 17.6 call and 17.6 put, right? It's not come to straddle, it's almost 50, maybe 17,600 call and maybe around 17,550. I did some adjustments also. I moved up the put calls to minimize, but so it's still bleeding.
The market was So like this is what is which you're talking about, which expiry? the same expiry. Same expiry means like 9th Feb or 23rd Feb? 9th Feb, sir. It's a weekly expiry, right? Yeah, weekly expiry. Yeah, So that's correct. before I take Mr. Pasi's take on this, because he's an expert on these things, I will add my 2 cents. If it is a 9th expiry, there's nothing to worry. First thing is, it's okay that it's bleeding. Till the time I am in the trade, anything can happen, right? That is first point. Second point, whenever you are stuck up in these kind of situations, always try to roll it up. Roll it up. Now market is already, if I am not wrong, 17,800, right? Now, holding on to 70,600 call will not serve your purpose. What you need to do, just go to option chain and check what is the premium of 17,600 call of 9th Feb. I am 100% sure the premium of 17,900 call of 23rd Feb will be same. समझ रहे हैं रवि जी? जो भी Okay, प्रीमियम yeah, आपका got it, yeah. 9th Feb का होगा, वही वाला प्रीमियम आपका 18,000 पे जाके आपको 23rd Feb में मिल जाएगा. तो what I can do, I can scare off 17,600 of 9th Feb and go to 18,000 of 23rd Feb. I have got a space. अब now there are two questions. यहाँ से in case market goes up, what I will do? आपका जो put है, आप you can still bring it up, right? आपके पास space मिल गया. In case market goes down, तो जो 17,600 वाले में कम होने वाला था, काफी हद तक, I will say not 100%, but 70 to 80% उसमें भी कम हो जाएगा आपका. राइट Okay. हमेशा ये मेरे साथ भी होता था कि अब तो वीकली ऑप्शंस आ गए. इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट कि आपको पता है कि यार मैं हमेशा रोल अप कर सकता हूँ एंड रोल ओवर कर सकता हूँ अपनी पोजीशंस को एंड विदाउट लूजिंग प्रीमियम. द मेन थिंग इज प्रीमियम लूज नहीं करना. लेट अस से 17,600 का आपका कॉल इज नाउ, आई एम जस्ट गेसिंग, 250 रुपीज, राइट? So obviously 18,000 call of 23rd Feb also will be 240 rupees. So I am giving just 10 rupees back to the market and again I am creating straddle से मैंने वापस strangle बना लिया. This is one of the possible adjustments. Right? संतोष सर. सर जी आपने तो पूरा बता दिया. सो बेसिकली स्ट्रैंगल टू स्ट्रैडल, स्ट्रैडल टू स्ट्रैंगल, ये फॉलो करते रहो. और आखिरी में रोल ओवर. आखिरी में अगर वो भी नहीं चलता रवि जी तो किसी ने तो कुछ कहा थोड़ी है. अपना पैसा है, अपनी मार्केट है, हम मार्च में ले जाएंगे उसको. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार बजट आया था और बजट में मार्केट सीधा 11,100 से मतलब मार्केट बजट की एक्सपेक्टेशन में 10,000 से 11,100 चला गया था. और मेरे पास जनवरी 30th को एक छोटा सा अकाउंट था जिसमें कुछ कॉल्स बिकी हुई थी, कुछ पुट्स बिकी हुई थी. स्ट्रैंगल ही था जैसा आपका है, लेकिन मेरी कॉल थी 10,500 की. अब जिस दिन 31 जनवरी को एक्सपायरी थी, जिस दिन एक्सपायरी हुई, ये कॉल सारी 600 या 700 रुपीज की हो गई. ऑब्वियसली डीप इन द मनी थी, तो मेरे को और कुछ नहीं सूझा और मैंने क्या किया, 31 जनवरी को ही 10,500 की कॉल्स को स्केयर ऑफ करके 12,000 की कॉल्स बना दिया 31 दिसंबर का. आप देख रहे हो, फ्रॉम जनवरी आई रोल्ड ओवर माई पोजिशन टू दिसंबर, बिकॉज अगर फेब में भी करता फिर कुछ हो जाता तो फिर अगेन आई वॉज इन ट्रबल. तो मैंने कहा यार आई डू नॉट वॉन्ट दिस हेडेक, इसको मैं पार्क कर देता हूँ दिसंबर में. एंड आई डिडंट लॉस्ट एनीथिंग. जितने में मेरी 10,500 की कॉल थी जनवरी 31 की, उतने में ही मेरी 12,000 की कॉल बन गई 31 दिसंबर की. यू विल नॉट बिलीव, वो बजट आया एंड दैट वाज द बजट जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर एडेड दिस LTCG, मिस्टर अरुण जेटली थे, और मार्केट 2-3 दिन बाद 9800 9850 पे आ गया. वो सारी पोजीशंस जो मैंने 670 या 700 रुपीज में बनाई थी, आई वाज एबल टू स्क्योर ऑफ बाय 10th Feb ओनली. दिसंबर वाली पोजीशंस को आई वाज एबल टू स्क्योर ऑफ इन 70 रुपीज. मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को 11 मंथ्स रुकना पड़ा, मेरे को 11 डेज भी नहीं रुकना पड़ा एंड मेरा पोजीशन स्क्योर ऑफ हो गया. वहां पे मेरे पास 2 चॉइस थी. स्ट्रेस में आके मैं सोचता अरे यार ये तो मार्केट तो बिल्कुल बेकार है, कोई इसको कंट्रोल ही नहीं करता है, मैं अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ कर देता और लॉस ले लेता. लेकिन मैंने कहा नहीं यार, लेट मी रोल इट अप. एक बार मैंने रोल अप कर दिया, मैं आउट ऑफ द मनी वापस चला गया. देन यू सी टाइम इज इन माय फेवर. मेरे पास है 10-11 महीने, मैं उसको और आगे लेता जाऊंगा. ऑल्दो आई विल नॉट से कि ऐसा करते रहो, बट एट सम पॉइंट इन टाइम यू नीड टू रोल अप योर पोजीशंस एंड डू नॉट कीप सिटिंग इन द मनी पोजीशंस. और उसमें कुछ नहीं कर सकते आप. कॉल की वैल्यू 70 रुपए से बढ़ती रहेगी, बट पुट विल नॉट रिड्यूस इवन बाय 20 रुपीज. तो अल्टीमेटली रेड M2M आता ही रहेगा स्क्रीन पे एंड वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता रहेगा.
और अगर आपको Yes, लगता है कि अगर आप ये वर्ड यूज करोगे कि ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ही बुरा हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तो पहले आप उसको आधा कर डालो, सो दैट आपको जो फ्यूचर से इम्पैक्ट होगा थोड़ा कम हो जाए। तो अज्यूम करना कि आपके पास 10 लॉट का है और शॉर्ट कॉल बहुत ही पेनफुल है, तो एक काम करो, शॉर्ट कॉल का जो 10 लॉट था उसमें से 5 लॉट को आप क्लोज कर डालो, सो यू वुड बी स्लाइटली कम, क्योंकि अभी जो उसकी डेल्टा का इम्पैक्ट होगा थोड़ा सा कम होगा। देन यू कैन टेक अ गुड डिसीजन कि आगे करना क्या है। दैट इज वन ऑफ माई अप्रोच ऑल्सो। Right. अगर You कुछ reduce the अगर position. कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले ब्लीडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में ला दो। Right. perfect. And also, sir, like I also noticed, like again, theoretically, the VIX also from 18 it was dropping down. I thought like when VIX comes down, my again totally was wrong. Yeah, I thought the market will come down, so the sudden spike will come down. But what I noticed was the premium started jumping. Like it was like so maybe it was because of the ITM. Again I started panicking. I didn't want to do anything. So that is one observation that I noticed. And also for rollover, when is that, like if it's on Thursday expiry, will Monday be a like I'll have to watch out for the market on Monday behavior and I can roll over on Monday, or do you suggest to wait till Wednesday? So what would be the ideal situation, again depending on the market condition? I will not answer, Mr. Ravi. You will answer. Now, suppose on Monday, market opens at around 18,650. Would you roll over? Would you not Don't roll give over? me a shot. No, I'm just asking. I'm just hypothetically saying. I'm not saying. You want Yeah, yeah. market to come down, right? You want Yes, market to come down. Obviously, your trade says that, okay, you want market to come down. Now, suppose market comes down to, let us say, 18,650 or 700. What will you do? Will you roll over? Will you not roll over? Got you. And suppose market goes to 18,900. What will you do? So market, now once you are in the trade, the market will decide कि क्या करना है, right? If market starts going up, obviously the best choice is roll over. कर दो, अभी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर market नीचे आ रही है, then I will see, yes, if I get an opportunity to reduce my 10 lots to 5 lots, that's great. मैंने अपने 50% of my losing trades I have finished without any loss. So that is also good. So depending upon how market will behave on Monday, so it's like a batsman. He will not fix his mind कि मेरे को this ball पे I need to hit a six. So mostly he will fail. He will see the ball and on the merit of the ball he will hit, whether it deserves four or whether he needs a very defensive approach to that particular ball. Right. So you need to decide in case market on Monday is going down. SGX was showing 30-40 points negative. I do not know what happens on Monday morning 9:15. So at that point in time, if market has gone down by, let us say, 100-150 points, then you can still sit, and then also if you roll over, it will be a better rollover. But in case you allow the trade to remain in the money for a very longer period and market touches 19,000, then the rollover will be a painful rollover. Yes, sir. Perfect. Right? Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, Mr. Day Trader. Please go ahead, sir, with your question. Yeah, I have actually two questions. First is, as the name suggests, I purely trade intraday. Why? Because I have tried a few things. First, I'm an option buyer, not an option seller. One thing that I have noticed while I take calls overnight is that if I have a call, if I buy a call and I try to hedge it with a little far away put, and usually the market is in the range on a normal day opens somewhere between 60 to 80 points up or down, then I end up if I'm not gaining on the call side, then the depreciation on both sides hits me hard. So is it first part of the question, is it a viable strategy as a buyer to engage my money in both sides just because I want a security for overnight? And second part of the question is for a longer term is, do you see, because I've seen many people now who were buyers earlier have started selling puts and calls. So do you see in near term future, let's say 2 to 3 years, where the premiums will come down because most of the sellers or the number of sellers would increase drastically? So one thing is sure, Mr. Day Trader, you see, may I know your name, please?
Yeah, sorry, I should have started with that. My name is Nitin. Nitinji, you see, buyers and sellers will always remain same in the market, right? Even today or even after 10 years from now, because if unless and until somebody is buying, somebody will not be able to sell. So number of buyers and sellers are always same. Now your first part of question, it is about a long strangle where you are buying a call and you are buying a put and you are keeping it as a positional trade. You are not scaring off intraday. Am I right in my understanding? Yes, in case I'm wanting to carry it overnight, let's say I expect a gap up on, let's say I've taken it on Friday and I expect a gap up on Monday. But let us say opens gap down. Is it for an option buyer? Is it a viable strategy, especially on weekends where there is a depreciation for 2 days? Is it a viable strategy to engage and or park my money in some of the puts so that in case it opens gap down, I have something that can give me some profit? Or should I just go naked if I have trust in my charts and analysis that yes, if I am holding a call, then I should hold it? I mean, is hedging a good strategy for buyers per se? मतलब No, एक- obviously, question here is what you're taking a long strangle and you're expecting that the market will make a move next day. It can be upside move, it can be a downside move also. No, no, no. I no, think no, I no, got no, my interrupt to no, the. no. Yeah, I got your question. So what the question is that day trader Nitin ji, he is currently in the long call, okay? Because he was assuming market to go bullish, so he just. There is only long call, is it? So currently long call is there, but end of the day, what happens? He is slightly scared and he goes for long put. At the end of the day, so अगर Monday कुछ हो गया, नीचे आ गया या ऊपर चला गया, नीचे आ गया, then he is thinking that that would be a better bet. Okay, so that is exactly the question. अगर आपको देना हो तो आप दीजिए जवाब, otherwise I'm happy. हाँ, please go ahead. मैं तो seller हूँ. I am a hardcore seller. Okay, so Nitin, yeah, so Nitin, what you're doing? So you're going for long call, okay? So now thing is, initially you're bullish, okay? So first of all, मैं बोलूँगा कि instead of going for a long put, rather you make that a long call into some kind of a bull call spread. Okay, उसमें क्या होगा कि maybe a 200 or 300 strikes above. आपको लग रहा है कि there would be some gap of around 200 or 300 points above. So just go 300 or 4 points above and short a call. So that would do what happens. That will give you some theta ka benefit. So whatever you're gonna lose in a long call, bit of that theta would be compensated by that short call. Okay. The Yeah, way you're okay. doing, you're buying another long. So in that case, what would happen? Both the side long call theta and the long put theta both gonna be will impact you negatively. Now it will be 2x. Initially it was a 1x impact. Now it will be 2x. So rather than that, the best approach will be continue with that same long call, but short something out of the money call also. Yeah, okay, got it. So that will convert your trade into a bull call spread. You are still bullish, right? Though now it all depends. Obviously, if you want to go into the market next day with a long call, so my understanding is that okay, your view is still bullish. It has not happened today sufficiently for you, but you still feel yeah, nahi, my view is bullish. That is why I'm continuing with the long call. So as Pasi sir said, it is very prudent that okay, you hedge that long call because even if your view is bullish, market can go down also. So if you hedge that long call with a slightly out of the money short call, that will take care that okay, in case market next day doesn't go up, it falls also, then also the damage will be very little. And agar market ऊपर जाता है तो then obviously it is still a bullish strategy, bull call spread, and profit तो फिर भी होगा, थोड़ा सा कम होगा लेकिन होगा. Yep, thank you. Thanks, Nitin ji. And okay, do we are getting some more requests, but time definitely is an issue. It's almost 1 hour. Please go ahead. Do you see I'm getting messages on on this Twitter, but you have to place your request here to speak, Mr. Rahul, Mr. Ratnesh. You have to give your request that okay, you want to speak. Only then we can make you speaker. On the left bottom of the screen there is a mic. You have to click on that, and once you click on that we will get that request that you want to speak, and then we will definitely allow you to speak because you're sending me messages on Twitter, you want to speak, but how do I allow you?
आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, नीचे एक माइक बना होगा लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे आपकी, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट. ओके, नाउ आई हैव गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मिस्टर. Okay, Mr. Rahul and Mr. Ratnesh, please make that request. Meanwhile, let me take a request from Mr. Mahesh. Mahesh ji, please go ahead, sir. Hello. Yes, Mr. Mahesh, please go ahead. Yeah. First of all, thanks for giving me a chance. What I would like to ask is, I know my question is something not related to the exact topic what we are discussing. What I would like to still ask is, I am also option seller. Just want to know what I observed. If we follow our risk management properly, and even if you don't go with the adjustments also. For example, I am trading intraday. Suppose I have fixed my rules like I will lose max to max 2% for each day, irrespective of what happen. I will enter into maybe in a triangle or straddle, whatever, with some fixed stop loss and maybe some target. In case my target is achieved, I will be out of the trade. And in case my SL will got hit, in case maybe 2% or whatever, 1.5%, I will be out of the trade. And I observed, I have done thorough analysis on that also. I observed that if we just follow such a simple technique also without any adjustments, then also there are high probability or high chances that you can end up at the month maybe earning around 4 to 5% of your 4 to 5% of ROI. Even if you are not going into adjustment and all kind of those things. So just want to have a advice or suggestion from all you expert guys, that will it be a good practice to go with this kind of a simple approach, or it is better if you are going with a higher capital into market, go with the adjustment kind of a approach, as you are rightly pointing out, please. Santosh sir. Okay, yeah. So now, I mean, there is no white and black answer for that. Okay, so you have your set of the rules. Okay, that if you're following and it is if you have a back testing and forward testing, maybe आपका मतलब जो currently trade ले रहे हो, if this is working, I would say continue that. Okay. But thing is that अगर आपको गाड़ी चलानी आ रही है उसमें आप कुछ एक छोटा सा skills और सीखते हो like adjustment, that could be a added advantages. Okay. So if you are not doing the adjustment, that's also okay. This will also perform very well. Sometime, in fact, sometime it happens if you do a lot of adjustment, that also costs a lot of money and plus it blocks a lot of capital also. Okay, so you can follow that. That will work in the long term. It's gonna work with this approach. You follow your risk management and the right position sizing. Those are the two very important critical factors. Adjustment nahi karna hai, that's your own choice. Sometimes we prefer to do the adjustment. Sometimes better to quit the trade and just go on the next trade. Okay. And as you rightly pointed out, in long term, maybe suppose we are going to trade with higher capital. So then is it better to go with adjustment approach? Maybe one or two adjustment, because sometime what if we are in a state of mind कि यार adjustment किसी भी हाल में I have to in the trade. Then what Okay. generally what happens? So I'll give you the answer. ठीक है, इसमें क्या है कि you assume that you took a trade कि आपने बोला कि मुझे I'm happy that my whenever there is a loss of 3% in a day, I'll quit the close all my position. So you took the first trade जहाँ पे your individual trade का stop loss was 1%. So you quit that trade and you took the new trade. Correct? That is the scenario you're talking. So what happens here? The first trade what you quit and the second trade you took actually for our guys हम लोग बोले कि उसमें आपने adjustment कर दिया, लेकिन आपने क्या किया कि trade पूरा का पूरा बाहर निकला और you took the absolutely new trade. So your second trade is actually, if you see, is a kind of adjustment for the first trade, although it looks like two separate different trades. Okay, so back end में you're doing the same thing, but वो लग नहीं रहा कि वो adjustment है. But for example, like हमने एक trade ले लिया, the next day in my case it does happen कि हमने iron control लिया, पूरा का पूरा iron control को निकाल दिया और नया trade iron control डाल दिया because market went up. You may say, yeah, this is adjustment. You may say, no, the first trade I completely quit out and I took the new trade. So in future, if you're going for large capital, this approach will also work. Your approach. Yeah, because generally what happened I observed is कि if we if in mind we have a that kind of scenario कि नहीं मुझे
in by hook or crook I have to be in the trade. For that maybe I need to make 5 10 adjustment for example, then also I will not come No, out no, of no, the trade. no, no. That you have to do that just for only 2 times, 3 times, not more than that. Because if you have kya kare, जबरदस्ती you're Yes, involved with yes, the trade, and you're just trying to run the trade, which is not in your favor. correct. Okay, so maybe a time you should have maximum like 3 adjustment हो गया. इसके बाद काम नहीं चला. Let me quit the trade. Let me take a half an hour break and then take a new trade. Great. Yeah. Thank you so much. Mr. Mills, I will also like to add, you see, it trading should not be a process of like flipping a coin कि आज मैंने trade ले लिया और आज अगर profitable है ठीक है, loss है तो ठीक है. So that definitely I will say in my scheme of things, if the capital is even low or high, देखो जिसके पास सिर्फ 5 लाख पे उसके लिए बेचारे के लिए वो भी एक हाई कैपिटल है. Correct. उसके लिए उसका कैपिटल भी 1 करोड़ जैसा ही है, राइट? क्योंकि उसके पास है ही उतना. तो दैट डजंट मीन कि मैं हर रोज एक सॉर्ट ऑफ गैम्बल ले लूं कि ठीक है अगर ये ठीक हो गया तो ठीक. अगर आप शॉर्ट करते भी हो, इफ यू आर अ सेलर ऑफ अ ट्रायंगल और अ स्ट्रैडल, तो देन आल्सो टू इंक्रीज योर हिट रेट आपको ये करना पड़ेगा कि यार लेट मी टेक दिस शॉर्ट ट्रेड व्हेन आई फील दैट ओके एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हैज ऑलरेडी गॉन अप. अगर अगर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज 11-12 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि डे टू डे बेसिस पे देयर विल बी अ डिके इन अ शॉर्ट स्ट्रैंगल, then you see ultimately as Mr. Pasi said that okay there is a skill, but if you can add on few more skills, then the success rate obviously will not be more dependent on chance. It will become more a design of trade. It becomes a system for you. Yeah. Right. So just blindly selling everything and then either taking profit either taking loss is, I will say, I'm not trying to demean you or anyway. मेरे को लगता है this is another part of a gambling instinct only. Not only There has to be some process. There has to be a thought process behind every trade. correct. I'm not saying कि just sell a straddle or strangle without any stop loss and just look at the MTM whether it is giving you a profit or loss. I'm saying you have to you will be keeping some fixed SL on both the legs, and then you will be running that particular strategy. It's not like that ki just like a gambling without any SL, just go into the trade, and if you see max MTM risk has been reached, just exit. I'm saying ki with some Sir, proper stop yeah. loss and kind of risk management technique, can we do that? Yeah, sir, I understood. Ravi ji, what's your name? So, I just missed your Mahesh ji, हाँ. correct? महेश, मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हो. सिंपल सा आंसर 920 स्ट्रैटल की बात कर रहे हो या ना जो भी ले लीजिए. ओके, पर लेग पे आपने स्टॉप लॉस डाला हुआ है, चलेगा. बैक टेस्टिंग हमने काफी बैक टेस्टिंग कर रखा हुआ है. इफ यू फॉलो द proper process in the long term, it will run. Yeah, because why I'm saying this, Santosh ji, I observed from last 5 to 6 months, I'm doing purely this kind of approach, like not 920, but kind of you can say ki like putting SL, and also if my one of SL got hit, then decide some target ki at that particular time I will be exiting the trade. So that way I'm operating, and by God's grace I'm able to make a minimum of 6% return per month. So that is why I चलिए yeah, so we are happy for you. Sanjay भी happy है. And if you see ये strategy will work in the future, it's gonna work because इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपका हर leg पे there is a stop loss. Okay, correct. so whenever that stop loss, one stop loss get out, and then you're waiting कि second वाला favor में चला जाए. Sometime if market is making only V kind of a shape one way, one way it's going down, then it's gonna work. But अगर वो V बना रहा है, N बना रहा है, W बना रहा है बड़े बड़े वाले, then it's gonna you have a portfolio stop loss also. You're gonna quit out of that trade. That's okay. Correct. One more thing I would like Yeah. to ask here. Ki, suppose any system or any strategy you have developed, so is it okay to stick to that particular strategy for maybe year on year if it is giving you some kind of return? Or do you suggest, ki, for Yeah. example, 1 or 2 months you are into the drawdown, maybe 4, 5, 6, 4, 5% of loss if any strategy is consistently giving you good returns, and if 1 or 2 months it has given maybe 2 or 3% of negative ROI, then do you suggest कि we should look for the another strategy or we should stick to that? सर जी आंसर दे दूं? मेरा ये मानना है कि something is working for you and if it has a logic involved in it, let that thing keep working for you.
short term में yes, like it's simply you tried some trade 20 times, and if you say 18 times या 17 times वो काम कर रहा है, तो why not continue doing that अगर वो चल रहा है. लेकिन अगर नहीं चल रहा है, डेफिनेटली दोबारा रीवर्क करने में भी there is no issue. Correct. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Thanks, Mr. Mahmood. Hopefully, we have answered your questions. There is a lot of questions are coming on this Twitter also, but I really do not know how to include those people here. So as of now, it's 9:46, so it's already more than 1 hour 50 minutes. So Santosh ji, I think I would like to give you a very, very hearty thanks for joining and guiding people on different hedging techniques. And I think we should close the session. Yes, thank you, Sergi, and apologies. There was some delay from my end. Okay, initially I just missed. Yeah. It is always a pleasure talking to you, sir. Always. So thanks, big thanks to you, sir, and thanks to all our participants for coming and for asking their questions. And we will definitely try to do these sessions many times in a month. And you see, I was very new to this technology, but yes, of late I am also learning. So we will try to see, in case people find it useful, we will try to come again and again and try to answer your questions. Right? Thanks to everybody for joining, and special heartiest thanks to Santosh ji. You're so nice, sir. Thank you, Pradeep sir, and thank you, everyone. Thank you.